आदाब, आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर राना मोहम्मद अरशद की जानिब से मेंबरान DC कॉलोनी के एजाज में इशाए का एहतमाम। हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद वहाँ मौजूद है, आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जनाब चौधरी सफ्तर हजरात साहब और जनाब आसिफ अब्दुल्ला खान साहब चौधरी शाह मंजूर चक्का साहब जनाब हाजी राणा मोहम्मद अरशद साहब चौधरी सफ्तर बड़ाई साहब की नबी बड़ी मेहनत बड़ी काविश कि जिन्होंने तहसील वजीराबाद या तमाम यूनियन कौंसिल विचों चेयरमैन वाइस चेयरमैन बुलाए और खुसूसी तौर पर अपने लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद अहमद चक्का साहब जनाब चौधरी जमाल नासर चीमा साहब जनाब चौधरी मुस्तफा सरसाई साहब और हाजी मुबशर अफजल चीमा साहब और मैं नाम लगा बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे पहले जी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यूनिटी ग्रुप के जो सरपरस्त हैं उनको और उसके बाद राना अरशद साहब को कि आज राना अरशद साहब ने साबित किया है कि यूनिटी ग्रुप के जो सरपरस्त हैं उनका फैसला वाइज है और इस ग्रुप और इस सोसाइटी के लिए आप लोगों की शक्ल में जो लोग मौजूद हैं वो दुरुस्त साबित हुआ है। तो दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ पिंडाल के अंदर मौजूद हमारे मेहमानाने गिरामी इन तमाम का शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए और जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कहीं पर कोई गलती कोताही हो सकती है, तो इसलिए मैं मुश्तरका तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लिए आए और हमें मौका फराहम किया कि हमारी बात सुन सकें। जनाब चौधरी अहमद चक्का साहब, जनाब जमाल नासिर चीमा साहब और जनाब डॉक्टर अरशद इकबाल चक्का साहब, दीगर मेहमान जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए जनाब मेयर नासिर साहब मेहंदर केटकोट, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का, भाइयों का नहायत मशहूर हूँ
میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے لیڈر محمد احمد چٹھا صاحب, جمال ناصر چیمہ صاحب, میں تمام بھائیوں کا مشہور ہوں جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محترم میں ناصر صاحب, عادی صاحب, مبشر افضل چیمہ صاحب, تمام دوستوں کا بھائیوں کا میں مشہور ہوں جنہوں نے آج ڈاکٹر ارشد چٹھا صاحب کا نائب مشہور ہوں جو ہمارے میزبان ہیں, صفدر امجاد صاحب کا, محترم شاہد مسعود چٹھا صاحب کا, آصف عبداللہ طارق صاحب کا, اور خاص طور پہ رانا محمد ارشد صاحب کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کو چار چاند لگا دیے, اور تحصیل وزیر آباد کے ان تمام دوستوں بھائیوں کا جنہوں نے اس الیکشن میں یونٹی گروپ کا ساتھ دینے کے لیے یہ ٹائم نکالا, وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شانہ بشارت الیکشن لڑنے کے لیے آپ آئے ہیں. الحمدللہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی احمد چٹھا صاحب اور جمال ناصر چیمہ صاحب اور تمام دوستوں نے مل کر مجھے کامیاب کروایا, اور اب ہم یونٹی گروپ ایک آپ تحصیل وزیر آباد کے تمام ساتھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. میں مستنصر سائی صاحب کا اور ان کے بھائی امتیاز سائی صاحب کا نہایت مشہور ہوں جنہوں نے یونٹی گروپ کو جوائن کرنے کے بعد ایک طاقت دی, اور انشاءاللہ تعالی ہم وعدہ کرتے ہیں آپ تمام تحصیل وزیر آباد والے دوستوں سے کہ یہ جو ڈی سی کالونی ہے اس کو ہم پنجاب کی بیسٹ رہائشی اسکیم بنائیں گے. ہم مستنصر سائی صاحب کے تمام تر جو ان کے تجربے ہیں, لاسٹ 7 الیکشن سے ان کا جو وہاں پر واٹر ٹاؤن میں ان کی جیت ہو رہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو ورک اور سوسائٹی کے بہترین کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے. الحمدللہ اب مجھے بھی ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹینیور میں ان کے جو ایکسپیرینس سے گین کرنے کا موقع ملے گا. لاسٹ ٹینیور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بھائیوں کی مدد سے جو ہم کامیاب ہوئے تھے اس میں ہم نے جو وعدے کیے تھے, جو میں نے اپنے دوستوں بھائیوں بزرگوں سے وعدے کیے تھے, الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے وہ تمام وعدے پورے ہوئے ہیں. آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آج آپ اپنے قیمتی ٹائم نکال کر آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ کا بیعت ممنون و مشکور ہوں, اور آج حاجی رانا محمد ارشد صاحب نے جتنی یہ شاندار دعوت یہ تقریب منعقد کی ہے میں ان کا بھی بیعت مشکور ہوں. آج آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی کالونی ہمارے شہر کی سب سے اچھی سوسائٹی ہے اور بہتری کی گنجائش ہر ٹائم اس میں موجود ہوتی ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یونٹی گروپ کے لیے ان کے شانہ کام کریں, اور یونٹی گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کے نامزد امیدواروں میں سے میں صدر کا امیدوار ہوں, احمد محمود رائے صاحب نائب صدر کے امیدوار ہیں, عاطف اتحاد چیمہ صاحب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں, ظاہر خان نیازی صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری کے امیدوار ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ایگزیکٹو ممبران ہیں آپ ان سب کی سپورٹ کریں اور ان کی مدد کریں اس الیکشن میں ان کے جتانے میں, کیونکہ جسی کالونی کے رہائشی ہم سب زیادہ اچھے بہتر طریقے جانتے ہیں کہ یونٹی گروپ بھی ایک واحد ایسا گروپ ہے جو کسی کالونی کے رہائشیوں کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رانا ارشد صاحب کو یہ خوبصورت نظم سجانے پہ. رانا صاحب, عبداللہ طارق صاحب, شاہد منظور صاحب, صفدر امجاد صاحب, یہ بھائی نا پچھلے الیکشن میں ہمارے ساتھ تھے. میں سال کے ساتھ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, بڑی ہمت والے جرأت والے ہیں, جس کے ساتھ ہوتے ہیں دل سے ہوتے ہیں. یہ ہمارے وہ بھائی ہیں, یہ کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر جس کے ساتھ ہوتے ہیں فرنٹ پہ آ جاتے ہیں اور 2 قدم آگے ہو کے اس کے لیے کام کرتے ہیں. اگر میں ان کے لیے یہ کہوں تو دے جانا ہوگا کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں مناظر کے سکورا, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ان کے آنے سے یونٹی گروپ کی طاقت میں اور یونٹی گروپ میں ایک بڑی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. انہیں ہم دل کے کاغذائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس چیز کی گواہی ہے کہ یونٹی گروپ جیت چکا ہے.
میرا مقصد یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا طریقہ کیا جائے کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پہ وہ محسوس کرے کہ وہ ایگزیکٹو ممبر ہے. ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہر بندہ محسوس کرے کہ ایگزیکٹو ممبر ہے. جب ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوتی سال سال ہم ان کے کاروباری مسائل کو بھی کرپشن کا نام دے دیتے ہیں. یہ مسئلہ بنتا ہے. جب ہماری پارٹیسپیشن ہوگی تو ان کو جو کاروباری مسائل ہیں ان کو کرپشن کا نام سے نہیں دیا جائے گا. کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہوگا جو اوپن نہیں ہوگا جس میں آپ سارے پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں. اگر یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو آپ بھی ساتھ کر سکیں. میں سوچ رہا تھا کہ آج انشاءاللہ میری باری نہیں آئے گی لیکن آخری ٹائم پہ مجھے بھی قابو کیا گیا یا پکڑا گیا یا کام کے لیے بات کرنے کے لیے کہا گیا. میرے بزرگوں میرے دوستوں آج آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. ہم لوگ احسان واپس کرنا جانتے ہیں ہم نبھانا جانتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہنا جانتے ہیں اور ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرنا جانتے ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یونٹی گروپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے جیت چکا ہے فتح ہو چکی ہے بگڑ پا چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 مارچ کی شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی خبر آپ کو سنیں گے. میرے بھائیوں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یونٹی گروپ پورے مکمل یونٹی گروپ کو ووٹ کریں اور سپورٹ کریں ان کو کامیاب کرائیں تاکہ ہم آپ کے سامنے جواب دہ ہوں. مہربانی کر کے کھچڑی نہ پکائیے گا کہ ایک ادھر سے جیت گیا ایک ادھر سے جیت گیا. نہ اس طرح مزہ آتا ہے نہ اسی طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین متبرین اور اس علاقے کے بہت لوگ صرف تحصیل وزیر آباد نہیں بی سی کالونی کا ہر فرد ہر ممبر ہر ملازم جس نے اپنا کردار ادا کیا. آج یہ لوگ جو اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو آپ نے بٹھایا ہے اور میرے خیال میں یا میری سوچ کے مطابق آج کے چیف گیسٹ آپ ہیں جو اس سائٹ بیٹھے ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کی تعاون سے آپ کی محنت سے یہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ادھر بٹھاتے ہیں سب کو. تو میں ان کے علاوہ زیادہ آپ سب کا مشکور ہوں. اور اس کے بعد جناب ناصر صاحب میں آپ نے آج ہم پہ بہت مہربانی کی آپ نے بہت شفقت کی ہم آپ کے ممنون ہیں. عادی صاحب بیٹھے ہیں عادی صاحب آپ کا بھی شکریہ. بغیر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے شہباز ویس صاحب بیٹھے ہیں اور اتنے بندوں زیادہ کا نام دیں تو کوئی نہ گھڑیا جاتا ہے ان سے معذرت. آج ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد جس طرح بھی کرنل سنگھ چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے لیکن چیمہ صاحب جس طرح ڈاکٹر ارشد اقبال چٹھا صاحب نے کہا ہم سب کا ساتھ دیں گے سوسائٹی کے انٹرسٹ میں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سوسائٹی کے معاملات میں جنران فیملی ہے باجوہ فیملی ہے برائی سبان ہے ان سب نے ہم پہ مہربانی کی ہے تو ہم پہ اعتماد کیا ہے. کریم پیٹر صاحب بیٹھے ہیں خالد صاحب بیٹھے ہیں اسلم برائت بیٹھے ہیں باقی سارے لوگ تو آپ آلریڈی ادھر ہمارے کسی کالونی کے رجیم میں شامل ہیں کچھ نئے شامل آئیں گے. تو آج یہ جو سوسائٹی کے ممبران ہم پہ اگر ووٹ دیں گے ہم اعتبار کریں گے تو ہمیں وہ ان کا اعتبار وہ ہم کو امین ثابت خود کرنا ہوگا. ہمارا آج کا پروگرام یونٹی گروپ کے لیے ہے اور اتنا زبردست پروگرام اور اتنے معززین ساتھیوں کو آج اکٹھا کیا گیا ہے. اس کا مقصد یونٹی گروپ کو کامیاب کرنا ہے اور اس کے لیے
खसूसन राणा अरशद साहब के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, मैं बात कर रहा, एक ग्रुप के लिए है और इस पूरे ग्रुप को हमने कामयाब कराना है। उसमें मियां कबीर साहब मेरे दोस्त, बड़े पुराना मेरा इनके साथ तल्लक है, बड़ी खुशी हुई, वो भी इस ग्रुप में शामिल है। बहरहाल हमने इस सारे ग्रुप को कामयाब करना है और इतना अच्छा प्रोग्राम जो मेरे भाइयों ने रखा है, आसिफ अब्दुल्ला तारक साहब ने, सफदर साहब ने और इनके बाकी साथियों ने, चट्टा साहब ने, ये इतना प्रोग्राम कराना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें जितने काबरीन, जितने साथी आज बैठे हुए हैं, ये चाहे ये मेहनत करे जितना टाइम है, तो ये ग्रुप कभी हार नहीं सकता। ये ग्रुप इंशाल्लाह जीतेगा और हम सब वादा करते हैं कि हम कम से कम 5 से 10 लोगों के वोट दिलवाएंगे, कम से कम। यानी ये एक मामूली बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक के लिए भी अगर कोई 50 दिला सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम जितने हम बैठे हुए हैं, ये इतनी कोशिश अगर हम करें, 5 से 10 बंदों के वोट दिलवाएं और वादा करें, तो हम इनको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे और ये कामयाबी हमारी सबकी होगी, हम सब दोस्तों की होगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, मेरे बुजुर्ग डॉक्टर शकील चट्टा साहब, मेरे बुजुर्ग कर्नल नसीम चीमा साहब, मदस्सर चीमा साहब, मेरे भाई मेयर नासिर हुसैन साहब, मुहियुद्दीन बड़ाई साहब, अफजल मुबशर चीमा साहब, मेरे चाचू मुसनसर साई साहब, इम्तियाज साई साहब उम्मीदवार बनाए, सदर आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब उम्मीदवार बनाए जनरल सेक्रेटरी, तमाम यूनिटी ग्रुप और स्टेज पर बैठे मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग दोस्त भाई, आप सबकी खिदमत में ये नाचीज़ जमाल नासिर चीमा सलाम पेश करता है। सबसे पहले तो मैं आज के मेज़बानों का दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन सफदर मुजराद साहब और आसिफ अब्दुल्ला तारक साहब का, राना मोहम्मद अरशद साहब का, कि आपने हमें यहाँ बुलाया, बुलाकर इज्जत बख्शी और जिस तरह प्यार भरे अंदाज में आपने एक एक शख्स को वेलकम किया, एक एक मेहमान का इस्तकबाल किया और बड़े ही चाह के साथ आपने एक बंदे को वेलकम किया है। और जिस तरह आपने एक वफादारी, रवादारी और एक रख रखाव का बरन रखा है, इस पर मैं आपको आसिफ अब्दुल्ला तारक साहब खराजे तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें इज्जत बख्शी। सामने बैठे हुए सारे भाई दोस्त साथी बुजुर्ग, आप सारे भी आज की महफिल में उतने ही वीआईपी हैं जितने यहाँ पर सारी बैठी हुई शख्सियात हैं। असल तो इस इलेक्शन में आप सब ने कर्म नवाजी करनी है, आप सब ने मेहरबानी करनी है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर किसी सियासी कैपेसिटी में नहीं आया हुआ, मैं तो आज यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए, अपने सज्जनों के लिए, अपनी साथियों के लिए, उनके मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए आया हुआ हूं। जो दोस्त साथी मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हर दो हाल में मेरी दुआएं इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना इस सारे वक्त में इस इलेक्शन के लिए और उसके बियॉन्ड भी इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि कामयाब होकर आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। बड़ा जबरदस्त मेरे भाइयों दोस्त साथियों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। हमारी इंतजामिया, भाई सफदर, आसिफ मेरा भाई, राना मोहम्मद अरशद साहब, शाहिद साहब,
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपने इज्जत बख्शी और इतनी आपने जामिया और खूबसूरत महफिल सजाई है। बहुत सारे दोस्तों साथियों से जिनसे बड़े अरसे से मुलाकात का मौका नहीं भी मिला था, आज वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और माशाल्लाह ऐसे ही लगता है कि वजीराबाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बड़ा अहम हिस्सा इस डीसी कॉलोनी के इलेक्शन का भी एक हिस्सा है और यहाँ पर आपका वोटर है। इस पैनल में बहुत से दोस्त, हमारे भाई दोस्त साथी यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं। यूनिटी ग्रुप के इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर तमाम मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम साहबान ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर जो हमारी इज्जत दिलाई की, हम इसको कभी नहीं भूल सकते। आपकी आमद पर हम हमेशा आपके मशहूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनिटी ग्रुप जिंदाबाद। जी, मेरे साथ आज की तकरीब के मेज़बान मोहतरम आसिफ अब्दुल्ला तारड़ साहब मौजूद है। उन्होंने अपने दरीना दोस्त मोहतरम राना अरशद साहब के एजाज़ में और उनकी टीम के एजाज़ में एक अशाइये का एहतमाम किया और उनसे पूछेंगे। जी सर, आज की जो तकरीब है इसमें हमने देखा कि आप सब गखड़ के वासी दोस्त हैं जिनका एक ग्रुप बन गया सारा और आप सबका तल्लक भी उधर से ही है। क्या यूनिटी ग्रुप को हम गखड़ का ग्रुप समझे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँ कि गखड़ का ग्रुप ना इसको कहें, बल्कि इसको ज़िला वज़ीराबाद और ज़िला गुजरांवाला का ग्रुप कहें। और हम ये बेसिकली डीसी कॉलोनी का ग्रुप है। इसमें से हम ज़िला वज़ीराबाद के मोस्टली रहायशी यहाँ पे ज़्यादा हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम भी यहाँ के रहायशी हैं और हमारे बहुत से अजीज़ वक़ारब दोस्त अहबाब हमारे गाँव से तल्लुक़ रखने वाले सब लोग जो हैं यहाँ पे रहायशी हैं और बहुत से हमारी तहसील और ज़िले के लोगों के प्लाट यहाँ पे जो कि इस डीसी कॉलोनी के मेंबर हैं। तो इस सिलसिले में हम जो मेंबर हजरात थे और जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात थे यूसी के, और उसके साथ हमने अपने MPs को और MNA को भी दावत दी कि वो भी इसरो सूख सकते हैं, वो भी इसके मेंबर भी हैं ऑलरेडी। तो इस तरह हमने ये गुलदस्ता इस तरह बनाया कि हमने यूनिटी ग्रुप के लिए एक काविश की है कि वो जितना अच्छी लीड ले सके हम उसके लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। राना अरशद साहब का सरप्राइजी तौर पर उम्मीदवार नए सामने आए हैं। इनका नाम पहले किसी भी जगह लिया नहीं जा रहा था। इसके पीछे मैं इसके हवाले से तरदीद करता चलूँ कि शायद आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। हम पिछले इलेक्शन में भी भरपूर थे और हमें, आपको शायद पता होगा या नहीं, हमें 2 टिकटें जो सफदर हजरा साहब हमारे सरपरस्त है, 2 टिकटें हमको दी गई थी, जो कि एक नबी अहमद चीमा साहब को और एक हमने नासिर हजरा साहब को दी थी। और अभी इसी दफ़ा भी हमसे भरपूर वो राब्ते में थे और बिल्कुल हम थोड़ा सा खामोशी इसलिए इख्तियार की थी कि साई बरादरान और आतिफ चीमा साहब दोनों हमारे अजीज़ थे और दोनों ग्रुपों को हम इकट्ठा करने के लिए काविश कर रहे थे जो कि बैकडोर पे थी। तो जब भी हमने उनको इकट्ठा कर लिया, जब उनकी हमने सुलह करवा ली, तो उसी वक्त हम फ्रंट लाइन पे आ गए और उन्होंने बल्कि हमें ये एजाज़ बख्शा है यूनिटी ग्रुप को, साहिब बरादरान को, जी आपने इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। फिर हमने अपने दोस्तों के अंदर बैठ के जो हमारे ग्रुप के दोस्त थे उनमें से जो मशावरत की, तो वो सफदर हजरा साहब की क़यादत में हमने फैसला राना अरशद साहब का किया। तो इस तरह एक राना अरशद साहब को हमने नॉमिनेट किया और ये अभी राना अरशद साहब का इलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सफदर हजरा साहब का इलेक्शन है, मेरा अपना इलेक्शन है, सफदर वड़ाई साहब का इलेक्शन है, शाहद मंजूर चट्ठा साहब का इलेक्शन है। बाकी हमारे जितने दोस्त यहाँ कैंट में और डीसी कॉलोनी में रैश पजीरा, हम सब एक पेज पे हैं। और पूरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब की जो पिछले दौर में कारकर्दगी उससे सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, हम सेटिस्फाई हैं। आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। फंड ना होने के बावजूद उसने जो काविशें की हैं, जो उसने काम किया, सेक्शन 3 का नक्शा ले लें या पेट्रोल पंप की NOCs ले लें, इस तरह के बेशुमार काम हैं जो उसने इतने, उसके खिलाफ स्टे आते रहे, उसको जो लिटिगेशन में डाला गया, उसके बावजूद भी उसने इतनी अच्छी काविश की, इतना अच्छा उसको सर्वाइव किया। पिछली बार भी आप लोग इत्तेहाद ग्रुप के साथ थे और क्योंकि आपके दोनों उम्मीदवार थे उधर से, एक जीते मोहतरम नबी अहमद चीमा साहब। इस बार आप एक नया ग्रुप बना तो उसमें शमूलियत इख्तियार करके? नहीं, मेरे ख्याल में नया ग्रुप नहीं इसको कहेगा, ये कैप्टन खालिद सुल्तान का ही ग्रुप है। और इस बार जो हमने ग्रुप बनाया, ये आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब और साई बरादरी, ये सारे एक ही बरादरी और एक ही रिश्ते के लोग थे, तो ये सारा बेसिकली एक ही ग्रुप था। और जब से इलेक्शन के बाद फ़ौरन से आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब और कैप्टन साहब एक पेज पे रहे हैं और उन्होंने जो भी काम किया अच्छे तरीके से किया और बामी दिलचस्पी से किया। आखिर पे आप
डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के लिए और आज के प्रोग्राम के हवाले से आने वाले लोगों के हवाले से को पैगाम देना? मैं डीसी कॉलोनी के रहायशियों के हवाले से, जिसकी मैं भी उसका रहायशी करीब बनने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं मेंबर हुआ करीब, मैं भी खुद अपनी रहायश यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बेहतरी के लिए मैं यही सोचूंगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ की बेहतरी के लिए एक अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे अमन रहना चाहिए, यहाँ पे सुकून रहना चाहिए और लोगों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और हम ग्रुप के अंदर ये बातें डिस्कस करते हैं कि डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए जितना जितना काम किया जा सके कम है, और इस डीसी कॉलोनी को हम कामयाब यूनिटी ग्रुप को वोट देना, और इंशाल्लाह हम यूनिटी ग्रुप के पूरे पैनल को वोट देंगे और पूरे पैनल के लिए वोट मांग रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको कामयाब करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू।